Namaskar. As we were discussing about the fundamentals of Indian classical music, under which today we are going to emphasize on the practical part of Indian classical music. That means the राग परंपरा. ये राग परंपरा क्या है, इसके विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे. राग परंपरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य परंपरा है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है. तो इसके अंतर्गत जो मुख्य राग हैं, जिनको कि हम आरंभ की शिक्षा में हमेशा सीखते हैं, उन रागों पर हमारा फोकस पहले रहेगा और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. So the basic ragas of Indian classical music have to be learned, have to be practiced in the beginning, so that we can, after learning these ragas, we can go to others also, because the basic ragas are very important. When we think about doing riyaz, now the question arises, what and how to do riyaz. So here these basic ragas, they help you a lot, because most of the basic ragas, they are, as the rag parampara has the time theory also, and during that particular time when we practice these ragas, we can really feel the actual bhav of that rag. And on other hand, it is a very wonderful, I should say, and it is must for the practice and for our vocal cords, for the voice culture to be developed. It is very, very important. So we'll be taking some of the ragas like Rag Bhairav, which is sung in the morning time, and Rag Eman, which is sung during the evening time. Besides that, some of the ragas like Vrindavani Sarang, Bihag, Rag Jaunpuri, Alhaiya Bilawal, etc. All these ragas we will describe in detail and will tell you how to do the practice of these ragas. राग की जब हम बात करते हैं तो राग जो है उसको, उसकी जो उत्पत्ति है या राग का जो निर्माण है वो स्वरों से होता है. स्वर यानी सारेगामा पधनी, इनके ही कॉम्बिनेशन से, इनको मिलाने से, या हम कहें इसके एक पर्टिकुलर साधारण शब्दों में कहूँ कि एक पैटर्न बनाया जाता है या एक डिज़ाइन है जिसको कि गा बजाकर जो है वो भाव या इमोशन जो है वो जागृत होता है. तो ये बहुत सुंदर राग हैं जो बेसिक राग हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के. और इन रागों का अभ्यास करने से, जैसा मैंने कहा, कि आपकी आवाज़ भी एक तरफ बनती है, आप रियाज भी बखूबी कर सकते हैं. दूसरी तरफ राग के विषय में भी आपको जो है बहुत अच्छे से जानकारी होती है, राग पर आपका कमांड होता है. तो प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से रियाज करें. जब हम रियाज की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि रियाज कीजिए, सुबह उठ के रियाज कीजिए, शाम को रियाज कीजिए. तो किस प्रकार से रियाज करें और क्या रियाज करें और कैसे रियाज करें, ये प्रश्न उठता है. तो राग को पकड़कर या हम राग को लेकर यदि हम रियाज करें तो हम राग भी सीखते हैं, राग में भी हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हम जो है अपने गले को भी जो है संवारते हैं, गले को भी हम गायन में जो है वो अच्छा बनाते हैं. वादक लोग जो हैं उन रागों को लेकर जब अभ्यास करते हैं अपने वाद्य पर, तो राग की पकड़ जो है वो मजबूत होती जाती है. हमें शुरू में जब हम राग को सीखते हैं तो कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है, और यही अभ्यास जो है आपको कराया भी जाता है आपके शिक्षकों द्वारा. तो उस अभ्यास को करते करते धीरे धीरे जो है हमारी सोच बढ़नी शुरू हो जाती है और हम उस सोच को लेकर राग में आगे जो है विस्तार कर सकते हैं. म्यूजिक, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल म्यूजिक, naturally it has a discipline, and we have to follow this discipline throughout the rag. Whenever we are playing the rag on an instrument or we are singing, we have to follow this discipline throughout the rag. Now, as I told you that for practicing, for doing the riyaz, you have to choose certain ragas which are the basic ragas, and these ragas have to be practiced again and again
so that the command has to be done, and so that we can, after some time, we can get our own creativity, we can explore the rag, we can, because the rag parampara itself is just like an ocean. And when we do the practice, yes, in the beginning we have to learn, we have to go through the Aro, the Alankar, how it goes, the process is there. Stepwise we have to do the practice, and we have to do the practice with understanding the rag, यानी राग को समझते हुए. So how to start our practice and how to start a riyaz, how to start a rag. I'll tell you what is the first step, what is the second, what is later on what we can do. राग की जब हम बात करते हैं तो राग को हम सबसे पहले जो बात है, क्योंकि हम बेसिक रागों को अब आपको बताएंगे. संगीत के विद्यार्थियों को आरंभ में जैसे उनको बताया जाता है कि राग क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, ये सब मैंने आपको इससे पहले की श्रृंखलाओं में आपको विस्तार से बताया. अब हम रागों को लेते हुए जो है उसको किस प्रकार से राग को गाया सीखा जाता है, कैसे उसको बरता जाता है, इसको आपको धीरे धीरे विभिन्न रागों के माध्यम से आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट वील टेक अ राग भैरव. राग भैरव इज अ राग विच इज संग ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम. Rag Bhairav belongs to Bhairav That. It is also known as Ashray Rag. Rag Bhairav has all the 7 notes, so it is known that this is the rag of Sampoorna Jati. That means any rag which is having all 7 notes come under this category. This rag has Dhaivat and Rishabh Komal, that means flat, and Dhaivat is also the Vadi of this rag. Vadi means the main swar, main note, which is which we say that it is just like a king or the main leader of the rag. And Samvadi, the consonant, Samvadi is the second important note, and Rishabh, Komal Rishabh, that is flat Rishabh, is the Samvadi of Rag Bhairav. Now Dhaivat and Rishabh both are Komal, but all the notes are Shuddh. So this completes the number of 7 notes under this rag. Rag Bhairav is sung during the morning time. It is a very serious rag. It is something which is, you can directly relate with the peace, with the calmness, and when we practice this rag in the morning time, we can feel the seriousness, that something which motivates us to just sit and meditate. So the combination of the notes give you that emotion, they give you that type of feeling. And on other hand, this rag can be practiced in Mandra Saptak, that is lower octave, Madhya Saptak, middle octave, and the higher octave, that is the Tar Saptak. So in the morning when we start our practice, we can do the practice in Mandra Saptak in the beginning for a long time, because doing practice in Mandra Saptak helps you to sing better in the when we are singing the Tar Saptak notes. कभी कभी विद्यार्थियों को एक समस्या आती है कि वो कहते हैं कि हम तार सप्तक पे हमारी आवाज़ नहीं जाती, या हम बहुत मंद्र पर नहीं जा सकते, हमारा स्केल अलग है. तो क्योंकि मैं ए स्केल से गा रही हूँ तो मैं इसी के आधार पर आपको बताऊंगी, लेकिन आपका जो अपना स्केल है आप उसको ध्यान में रखते हुए उसी स्केल से आप गाइए, जिससे कि आपको सुविधा हो, आपको किसी प्रकार का कोई जोर ना पड़े. हाँ, जब मंद्र सप्तक की बात करते हैं तो मंद्र सप्तक के स्वरों को आप सुबह भैरव, क्योंकि बहुत शांत गंभीर प्रकृति का है, कभी कभी करुण रस भी इसमें जो है हमें फील होता है, तो इसीलिए इसके जो स्वर हैं वो मंद्र सप्तक में आरंभ में यदि हम उसका अभ्यास करें तो हमारी आवाज़ भी इससे बेहतर बनती है. तो हम भैरव की बात कर रहे थे, भैरव ऋषभ और धैवत कोमल, और बाकी सारे स्वर जो है वो शुद्ध हैं. भैरव को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम रियाज शुरू करते हैं, तो वहाँ पर उसको जब स्टार्ट करें तो पहले षडज पर पूरी सांस को लेते हुए षडज को हमें
भरना चाहिए, यदि सुर भरना कहते हैं जिसे, तो षड्ज से हम इसका आरंभ करते हैं। हम गहरी सांस लेते हैं, पुनः इस प्रकार से आरंभ में षड्ज जो है उसको बार बार गाना चाहिए। अब भैरव के यदि हम आरोह की बात करें, वो कुछ इस प्रकार से है। सा रे गा मा पा प्रकार की बनावट राग भैरव की है, जहां ऋषभ और धैवत आरोह अवरोह दोनों में कोमल हैं। तो हमें ये पता चल गया कि राग में आरोह अवरोह किस प्रकार से लिया जाता है। ऋषभ और धैवत आप अपने आप उसको महसूस कीजिए कि जब हम कहते हैं कोमल है, तो वो कहीं ना कहीं उसी प्रकार से वो साउंड भी करते हैं। सारे, अब तुलना कीजिए शुद्ध ऋषभ से, सारे रे रे, फर्क है। सारे गा मा पा रा, फिर धैवत को देखिए, वो भी कोमल है। नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो जब विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, उनको ये राग सिखाया जाता है, या हम कहें कि शुरुआत में जब संगीत की शिक्षा ली जाती है, तो ज़्यादातर राग भैरव की शिक्षा या राग एमन की शिक्षा जो है वो उससे आरंभ किया जाता है। तो हमने राग को जाना, राग में 7 स्वर हैं, 7 स्वरों में ऋषभ और धैवत कोमल है और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। अब इससे हम इसको आकार में भी कर सकते हैं, स्वरों में भी हमने किया, लेकिन उसके आगे और क्या, क्योंकि विद्यार्थी जब किसी को सुनते हैं राग भैरव, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में जिज्ञासा, ये प्रश्न उठता है कि आरोह और अवरोह के बाद और क्या। तो आरोह और अवरोह को कई बार आपको गाना चाहिए, सो दैट उस राग के स्वरों को आप अच्छे से समझ लें। इसी प्रकार से आकार में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। After knowing the notes or the aroh avroh of this rag, we should go for the main phrase of rag bhairav. So what is the main phrase, which is also known as pakad, that is ga ma da pa ga ma re sa ha the main phrase of Rag Bhairav, which is also known as the Pakad of Rag Bhairav. Pakad means that important phrase which immediately gives the face of the rag, or you can recognize the rag immediately as soon as you listen to it, or you sing to that phrase, or you play
it on any of the instrument. Now, after knowing the Arovro and the Pakad, we try to learn how to do the practice of Rag Bhairav, or how we can explore Rag Bhairav. So let's start with the Mandra Saptak. Dhaivat and Shadj, Dhaivat and Rishabh. These are the beautiful combinations which we have to use again and again in Rag Bhairav. Sa da da pa. Pancham is a Nyas Swara, so we have, while singing the Rag in lower octave, we can emphasize on the Pancham note, or we can pause on that note. Sa da da pa ga ma ga ga sa ga ma da da sa da re da sa. आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि मैंने जब आपको आरो अवरो और पकड़ बताई, उसके बाद मैं आपको मंद्र सप्तक की तरफ ले गई, तो मैंने वही आरो अवरो क्यों नहीं मंद्र सप्तक में अभ्यास किया, या मैंने उसी पकड़ को मंद्र सप्तक में क्यों नहीं अभ्यास किया। देखिए, राग जो है वो एक, जैसे मैं कहती हूँ, एक महासागर है, और उसमें ये जो स्वर हैं ये उसका बेस है। अब इन स्वरों को लेकर जो है एक कल्पना की जाती है, और उस कल्पना में लेकिन अनुशासन का होना जरूरी है। तो जो शास्त्र कहता है राग का, तो वो कहता है कि उसमें सा दा दा पा गा मा गा, इस प्रकार से उसकी बढ़त की जाती है। और ये बढ़त जो है वही राग को जो है एक विस्तार से उसको गाने के या उसको बजाने का किसी वाद्य पर उसमें मदद करता है। नहीं तो 2 मिनट में राग खत्म। यदि हम आरो अवरो पकड़ गाएं तो राग खत्म, उसके बाद एक बंदिश गाएं, आलाप तान कर दे खत्म। तो आपका अपना उसमें वो समझ, और उस समझ को लेके राग को बरतने का या समझ को लेके राग का विस्तार आप कैसे करेंगे। तो ये जो फ्रेजेस हैं या ये जो विशिष्ट स्वर संगतियां हैं, ये इसमें आपको हेल्प करती है। और इस प्रकार से मंत्र गाने से आपके गले में, क्योंकि प्रातः काल आप देखिए गला भी जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे बाकी पूरे दिनचर्या में हमारा गला एकदम खुला होता है। सुबह थोड़ा, क्योंकि हम भी अलसाए हुए होते हैं, और सुबह गला थोड़ा शांत होता है। कई बार गले में थोड़ा कुछ कफ है या गले में किसी प्रकार की खराश है, कुछ तो कुछ जो है वो जो कोई डिस्टरबेंस है वो थोड़ी बहुत रहती है, जिससे कि अभ्यास के द्वारा हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं।
और जैसे मैंने कहा कि मंद्र सप्तक में इसका अभ्यास करें, तो मंद्र सप्तक में गाते हुए जब हम उसको गा रहे हैं तो राग का एक तरफ विस्तार भी हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा मंद्र सप्तक का अभ्यास भी हो रहा है. So the lower octave is very important while practicing any of the rag or while doing your riyaz. So Mandra Saptak notes, it is the same procedure what we do in the middle octave, the Vistar, how to explore the rag in middle octave or later on in the tar or the higher octave. It is the same thing which we do in the lower octave. So the same way of exploring the rag or singing the notes of the rag in different combinations in lower octave is very important, especially for rag Bhairav. While doing the riyaz, we should do it again and again. पंचम पे बहुत देर तक रुकना. जब भी हम षड्ज पर आए तो गहरी सांस के साथ हो सकता है शुरू में आपकी आवाज मंद्र सप्तक के षड्ज तक न जाए, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे पंचम पर, मध्यम पर, गांधार पर, ऋषभ और षड्ज यानी मंत्र सप्तक के जो षड्ज है उस पर आवाज धीरे धीरे जाने लगेगी. आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपने स्केल से गाना है, यानी किसी का जी शार्प है, किसी का जी है, किसी का ए है, किसी का ए शार्प है, किसी का बी है, किसी का सी है. कोई भी स्केल हो, आप अपने स्केल से, अपने जो जिसमें आपको सुगम लगता है गाना, उससे आप मंद्र सप्तक में जाने की कोशिश कीजिए जब आप राग भैरव को गा रहे हों.
और इस प्रकार से सांस भरते हुए जब आप गाएंगे तो आपका गला, आपकी आवाज़ जो है वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद इसी प्रकार का जो एक जो विस्तार है ये मध्य सप्तक में आता है। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से वही रिपीटिशन है, तो मध्य सप्तक में किस प्रकार से। तो तानपुरा जो है उसमें क्योंकि लाइट्स का वेदर का जो है इसका असर पड़ता है, इसलिए तानपुरे को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस राग को मंद्र में इस प्रकार से अभ्यास किया जाए, इसी को हम और आगे आपको विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से भैरव का अभ्यास आपको करना है।